Hello students, first of all welcome to you to in this channel and good morning to you. Now we are going to evaluate a different types of integral. This is the session in which we are evaluating a special type of integral. Okay? This is different from the integrals as we are studies in the last lectures which you have already seen. Here you can see that we have already written on the board. I have already written on the board that some special integrals. In during the session of the indefinite integrations, we are discussing some special types. In the middle of these different types of integration, we will discuss some special types of indefinite integral, and this is also a special type of indefinite integrals. So you must have to know what this type of indefinite integral is this. So you can see here, we can write. We written on the board. We have written on the board integrals of the form integration of x to the power n into a plus bx to the power n with respect to p. Okay. This is the time you can recognize it. You must have to recognize it. If you first of all you have to recognize this phase, then you use these working rules and then go to the problem sections. You do not directly go to the problem sections before you knowing this its form as well as the working process या working rule. So hello students, first of all we have to recognize the form of this integral. So here is the form. You can see that this is the integration of x to the power n into a plus bx to the power n to the power b with respect to x. This is the integration. If these type of integrals are involved, these type of integrals are given to evaluate to you in any test conducted in your class or any examinations and or any competitive examinations, you must have to know these rules. So here you can say we have already written on the board that case 1, if p belongs to n means this is the capital N, and you already know about the set theory. n indicates the set of natural number. कहता है कि अगर p जो है नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर का तो 1 2 3 4 5 हो, तो आप जान सकते हो कि अगर यहाँ a plus b x to the power n उस पे पावर 5 रखते हैं तो सीधा सीधी बात है आप बाइनोमियल यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है a x plus y to the power n, अगर n आपका नेचुरल नंबर है तो बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड कर देंगे. ठीक है, वही लिखा हुआ है कि अगर p आपका नेचुरल नंबर है तो वी एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल एंड इंटीग्रेट. मतलब पहले इसको बाइनोमियल से इंटीग्रेट कर लीजिए, सॉरी बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लीजिए, उसके बाद आपको इजी वे में एक पॉलिनोमियल दिखाई पड़ेगा और पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन आपको पता है एक ही फार्मूला लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, और उसका फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c. आप यहां पे इजी वे में लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा आपको p जो है नेचुरल नंबर दे. ऐसा भी तो हो सकता है कि नेचुरल नंबर के अलावा भी कुछ और हो जाए. तो हम केस 2 में मूव करते हैं. देखिए केस 2 क्या कह रहा है कि if p belongs to i माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर, मैंने यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है दिस इज नेगेटिव इंटीजर. तो कहता है उस केस में राइट x इज इक्वल टू t टू द पावर, मतलब आप जहां भी x आप देख रहे हो उसको आपको क्या मानना है x इज इक्वल टू t टू द पावर k, और जहां k जो होगा वो क्या होगा, कह रहा है k इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ m and n. एक्चुअली इस केस में m और n जो फ्रैक्शंस होंगे, अगर m और n अगर फ्रैक्शन है तो उसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आपका रखा हुआ है उसका आप एलसीएम लेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा वो एलसीएम आप k के जगह में सब्स्टिट्यूट कर दो. मान लो कि m का वैल्यू जो है 1/2 है, n का वैल्यू जो है 1/3, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो यहाँ लिखेंगे t टू द पावर 6. क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां देख सकते हैं केस नंबर 3, इफ m प्लस n, एक्चुअली पहले ये लिखना चाहिए था कि p अगर फ्रैक्शन हो जाए
तीन केस पर p अगर नेचुरल नंबर है तब तो बाइनोमियल लगाएंगे, p अगर नेगेटिव इंटीजर है तब ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे, केस टू यूज करेंगे। लेकिन अगर p फ्रैक्शन है तो आपको एक चीज और देखना है, क्या देखना है, m प्लस 1 बाई n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और आपको पता है m कहाँ है, यहाँ जो x का पावर है वो m है और यहाँ वाला जो x का पावर है वो m है। आपको कैलकुलेट करना है m प्लस 1 बाई n, ठीक है। और कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक नंबर मिलेगा और वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि अगर वो नंबर इंटीजर हो और p तो ऑलरेडी अपना फ्रैक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कहता है पुट कीजिए a प्लस b h टू द पावर, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले में आपको कहता है p टू द पावर k पुट कर दीजिए। फिर यहाँ k कुछ होगा तो k के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, where k is the denominator of the fraction p, मतलब k जो होगा वो p जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है, जैसे मान लीजिए 3/5 हो गया तो फ्रैक्शन में उसके डिनोमिनेटर में कौन हो 5, तो यहाँ लिखेंगे p टू द पावर। क्लियर? चलिए अब मैं चौथे केस की तरफ मूव करता हूं। द फोर्थ केस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द पावर ऑफ p if p belongs to fraction। कहता है कि अगर p फ्रैक्शन हो जाए, क्लियर, तो अगर p फ्रैक्शन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है m प्लस 1 बाई n। अब एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे, p फ्रैक्शन था तो एक केस ये आएगा, ठीक है, तो m प्लस 1 बाई n किए जो कि इंटीजर है, तो हम लोग केस 2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि p फ्रैक्शन होता है लेकिन m प्लस 1 बाई n जो है आपका इंटीजर नहीं आता है, तो वैसे हालात में, वैसे सिचुएशन में हमको p ऐड करके देखना है। क्लियर? अगर इसमें एडिशनली p ऐड किए और ऐड करने के बाद अगर हमको इंटीजर मिला तो मैं ये केस फॉलो करूंगा। कौन सा केस क्या मानूंगा मैं? उस केस में हम लोग पुट करेंगे वी पुट a प्लस b h टू द पावर n, देख सकते हो a प्लस b h टू द पावर n, उसके जगह में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे t टू द पावर k इनटू h टू द पावर n इनटू h टू द पावर n। क्लियर? फिर वही बात है, where k is the denominator of the fraction। तो दिस इज द वर्किंग रूल, मतलब जिस तरह का सिचुएशन उस तरह का वर्कआउट करना है। क्लियर सी बात है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ यू रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इफ यू रिकॉग्नाइज द इंटीग्रल एंड यू नो द वर्किंग रूल एसोसिएटेड टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, देन I realize and I think that you must evaluate every integrals that you are going to evaluate, that you are क्या कहते हैं say to evaluate कि बाबू इसको सॉल्व करके बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको चेहरा पता है, आपको रूल पता है, तो आप आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इन सारे इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं अगर उसका ये चेहरा है और आपको रूल पता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए। फिर मैं प्रॉब्लम सेक्शन, प्रॉब्लम जो मैं कुछ लिख के रखा हूं आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, वो प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा और एक एक प्रॉब्लम को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको आप एक बार रेडी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, जब हम लोग स्पेशल टाइप्स का फॉर्म देखेंगे और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके रूल्स देखे कि किस तरह के सिचुएशंस रहेंगे तो उसको कैसे हैंडल करना है। अब हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद जो अगला सेक्शन आता है वो आपका प्रॉब्लम सेक्शन आता है। ठीक है, तो जब तक आप कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हो और जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं करते हो तो बस उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब कोई भी पर्पस, कोई भी थ्योरेटिकल पर्पस को फुलफिल करना है तो यू मस्ट हैव टू गो टू द एप्लीकेशन सेक्शंस। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आप कोई फिजिक्स में आप थ्योरेटिकल मतलब लैब करना चाहते हैं, तो लैब का आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, लैब का थ्योरी पता है, लेकिन आपने कभी लैब ही नहीं किया, मतलब आपका एप्लीकेशन जीरो। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में क्या है कि कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो बेसिकली आपका एक मोटिव रहना चाहिए कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, मतलब हमको एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन लेना है।
ना कि थ्योरेटिकल बेस्ड लेना है। थ्योरेटिकल बेस्ड में क्या होगा कि आप सब चीज जानोगे, लेकिन अगर आपको कोई इक्विपमेंट दे दे कि बाबू कहेगा इसको एक्सपेरिमेंट करो, तो आपका हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा मोटिव रखिए एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन की तरफ भागने का। थ्योरेटिकल बेस्ड एजुकेशन जो है वो नाम मात्र का होता है, उससे आपका बस थ्योरेटिकल ही नॉलेज इन्हांस होगा, आपका प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो कभी भी इन्हांस नहीं हो पाएगा, मतलब आप स्किल्ड नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? स्किल्ड होने के लिए आपको प्रैक्टिकल के तरफ मूव करना ही करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशंस की तरफ मूव करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग बोलचाल की भाषा में वेल्डिंग सुनते हैं, फिटर सुनते हैं, असेंबलिंग सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी असेंबल किया है कोई चीज? नहीं किया। इसलिए आपको पता, मतलब आप जान रहे हो, यू आर फैमिलियर विद द वर्ड, you are not familiar with the actual phenomena which we are happening in the process. So and this is the era, ये एक ऐसा era है जिसमें आपको क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड होना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशंस की तरफ मूव करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल रहिएगा तो आपका सवाल पैदा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, खास करके इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि थ्योरी तो हम लोग पढ़ लिए और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाना, मतलब थ्योरी का एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। और ऐसे भी जितने सारे मैथमेटिक्स है और हम लोग इंजीनियरिंग के लिए अगर पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों, एक्चुअली जो है इसका आगे चलके यूज क्या है, मतलब इसको यूज करना है इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत सारा चीज देखेंगे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो एप्लीकेशन है आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा क्या कहते हैं कार्बन 14 का, डीके, याद है आपको? हाफ लाइफ निकालते थे आप लोग फिजिक्स वगैरह में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के रूल से निकाल सकते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, वो आपका नेचुरल फेनोमेना है, तो वहां हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं उसको निकालने के लिए। आपने सुना होगा एलआर सर्किट्स, ठीक है, इंडक्शन रेसिस्टेंस सर्किट जो होता है, उस सर्किट में करंट वगैरह निकालना है आपको, तो ये सब एप्लीकेशंस है इंटीग्रेशंस का, इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया बाउंडेड बाय कर्व, या फिर जो आगे चलते डिफरेंशियल इक्वेशंस का एप्लीकेशंस। ठीक है, फूरियर सीरीज पढ़िएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़िएगा, ये सब का बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। ठीक है, और इंटीग्रेशन जो है उसका बेसिक पार्ट है। कहा जाता है कि इसका इंटीग्रेशन अच्छा, इंडेफिनिट अच्छा होगा तो फिर आपको डेफिनिट में हेल्प करेगा, इंडेफिनिट अच्छा होगा तो एरिया बाउंडेड भी आपका अच्छा हो जाएगा, इंडेफिनिट अच्छा होगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में हेल्प करेगा। मतलब आगे जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर्स के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो आपका बेस हो गया, और कहा जाता है कि बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए मेरा अपना मतलब व्यू है कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल दे दे तो आपसे वो छूटे ना, और आपका ऐसा कभी ना हो कि हम इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को नहीं जानते हैं, जिसके वजह से मेरा जो हायर पोर्शन है वो मेरा नहीं कवर अप हो पा रहा है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आपको हर हाल में स्ट्रॉन्ग करना है, ये आप पे भी है और मेरे पे भी है, हम आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेशन। तो आपका देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ 6 प्रॉब्लम्स लिख रखे हैं, और 6 में से जो पहला दो है वो सेम कैटेगरी का है। ठीक है, तो कोई भी एक बनाऊंगा या मैं दोनों बना दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो मैं ये जो 6 इंटीग्रल यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं 6 इंटीग्रल्स को एक एक करके बारी बारी से क्या करने जा रहा हूँ, इवेल्युएट करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक नंबर लिखा मैंने और यहाँ लिखा इवेल्युएशन। क्या है आपका, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 1/3 इंटू 2 प्लस एक्स पे पावर हाफ एक्स टू दी पावर हाफ एंड उस पे पावर बना हो गया 2। ठीक है, सीधा सीधी बात है, अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। हियर this is m, this is n and this is p. Here m is equal to 1/3, n is equal to 1/2 and p is equal to 2, जो कि नेचुरल नंबर है। इसका मतलब पहला केस हम लगा सकते हैं। कौन सा केस लगा सकते हैं? फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस क्या है मेरा, कि अगर ये p नेचुरल नंबर हो तो हम लोग यहाँ बाइनोमियल चलो, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं। तो आपका डायरेक्ट लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/3, ये हो जाएगा 2 पे पावर 4, 2 पर 2 प्लस 2a, तो 2 into 2 into x to the
पावर हाफ और प्लस इतना का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली x हो जाएगा और ये हो गया। क्लियर? मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x टू द पावर 1/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4x टू द पावर, जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 तो हो जाएगा 3 तो हो जाएगा 5/6 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा आपका सिंपली dx। अब आप क्या करो, इन सारे का अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये 4 कांस्टेंट हो के बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है, प्लस ये 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 11/6 यहाँ हो जाएगा 11/6 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 7/3 और यहाँ हो जाएगा 7/3 प्लस कांस्टेंट। इसको चाहो तो थोड़ा सा आप अरेंज कर सकते हैं, 4 4 कैंसिल 3 ऊपर चल जाएगा और ये हो जाएगा x टू द पावर 4/3 प्लस 24/11 x टू द पावर 11/6 प्लस ये हो जाएगा 3/7 x टू द पावर 7/3 प्लस कांस्टेंट टर्म्स। Here you can see this is the complete integral of this given integrations। और आप देख सकते हैं मैंने पहला रूल फॉलो किया और ये तो जस्ट अलजेब्राइक हो गया, तो आप पहले से देख लीजिए। So this is the first questions which we evaluated in front of you, you can see here। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर वही बात यहां पे देख सकते हो, हियर m इज इक्वल टू हाफ, n इज इक्वल टू 1/3 एंड p इज इक्वल टू 4, जो कि आपका नेचुरल नंबर है। इसका मतलब आप यहां पे क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। यहां लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। पिछली बार भी हमने बाइनोमियल लगा दी क्योंकि हमको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता था, इसलिए डायरेक्ट लगा दिया। लेकिन यहाँ हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं थ्रू बाइनोमियल एक्सप्रेशंस वाला जो फॉर्मूला है उसको मैं यूज करूँगा, ठीक है। ये हो जाएगा NC0 n की जगह 4 हो जाएगा 4C0 इंटू 1 टू द पावर 4 तो सिंपली 1 इंटू x टू द पावर समथिंग 0, तो ये हो जाएगा पहला। सेकेंड टर्म 4C1 1 पे पावर कुछ भी नहीं खत्म कहानी, ठीक है, और x पे 1/3 पे पावर 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4C2 x पे पावर 2/3 प्लस 4C3 x पे पावर 3/3, ठीक है, प्लस 4C4 x टू दी पावर ऑफ x का पावर 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 4/3। ये कैलकुलेट, अब इसको कैलकुलेट करो, 4C1 होता है 1, 4C1 4 होता है तो हो जाएगा 4 into x पे पावर 3, ठीक है, प्लस 4C2 जो होता है कितना हो जाएगा 4 into 3 4 12 तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 6x पे पावर 2/3 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4C2 और 4C3 का वैल्यू होता है जो 4C1 का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में 4C4 जो होता है 1 होता है, ये हो जाएगा x टू द पावर 4। तो this is the expansion of 1 plus x to the power 3 to the power 4 using the binomial expansion. Now substitute the value of this in the given expressions. So we will get I is equal to integration means x to the power half and this 1 plus 4 into x to the power 1/3 plus 6 into x to the power 2/3 plus 4 into x plus x to the power 4/3 x to the power 4/3 into dx. Now we multiply this x to the power 1/3 plus 4 into x to the power जुड़ जाएगा तो 2/3 plus 6 into x to the power 3/3 तो simply x plus 4 into x to the power 4/3 plus x into 5/3. Clear? This is the algebraic expression. Now you can
integrate it with respect to x. So this is x to the power 4 by 3. This is 4 by 3 plus 4 into x to the power 5 by 3, and this is 5 by 3 plus 6x square by 2 plus 4 into x to the power 7 by 3, 7 by 3 plus x 8 by 3 upon 8 by 3 plus constant terms. Here you can write the simplified form. This is 3 by 4. If you want to, you must have to इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां में फाइनली जो आई होगा वो आपका हो जाएगा 3 by 4 x to the power 4 by 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 12/5 x के पावर 5/3 प्लस ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 12/7 x के पावर 7/3, ठीक है, प्लस और यहाँ हो जाएगा 3 by 8 x के पावर 8 by 3 plus constant terms. And this is the final answer. You can see here. This is the final answer. हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बट मैंने प्रॉब्लम को करेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम को ही मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर रूट था, वहाँ पे क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। क्यूब रूट लिया क्योंकि मैंने क्यूब रूट यहाँ यूज किया है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि इस प्रॉब्लम को फिर से हटाऊं, फिर उसके बदले नया प्रॉब्लम डिस्कस करूं, क्योंकि मेथड तो सेम है। मेरा मकसद है आपको मेथड समझाना, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं दिखाना। तो मैंने यहाँ पे क्यूब रूट ले लिया और क्यूब रूट लेके ही मैंने सवाल बनाया, ठीक है। तो आंसर स्टडी नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं कर रहे। फिर मैंने देखा कि देयर इज अ स्लाइटली मिस्टेक, हियर वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ x बट वी यूज क्यूब रूट ऑफ x, सो आंसर विल बी डिफरेंट। सो मैंने क्या किया कि क्वेश्चंस को भी चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा आपका, और दिस इज द फाइनल आंसर यू कैन सी। अब जो बाकी 4 प्रॉब्लम है मैं उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको जो भी मेथड्स है या जो मैं टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं टाइप आपको बता रहा हूँ, वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ रही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिटन ऑन दिस बोर्ड, ठीक है। अगले लेक्चर में इन सब प्रॉब्लम्स को मैं रहने दूंगा, इसको मिटाऊंगा नहीं, बट मैं 3rd नंबर से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। So thank you for this. Thank you for viewing me and appreciated me. And I hope I always tell you keep watching this video more and more. That's why your concept will be clear. ठीक है? And there will be no confusion after watching this type of video more and more. And it will be better practice for you for the integration chapter. So thank you.